Shri Raghu Hari Dalmia ji. Dalmia ji received a Bachelor of Technology degree in Mechanical Engineering in the year 1972 from IIT Delhi. He hails from one of the most prominent business families of the country and led a number of companies with diversified interests, including cement, industrial ceramics, and mechanical engineering. He has held leadership positions in various Indian business associations and is a trustee of various trusts in Chirawa region of Rajasthan. These trusts promote education, water conservation, and village development activities. Jai Krishan Jai Dayal Dalmia Seva Sansthan, which was established in the year 2004 at Chirawa, Junjunu district of Rajasthan, is one of these trusts. The trust is currently working with 80,000 people across 55 villages with a vision to bring Khushhali with equity, harmony, and prosperity in the region. The areas of interventions include drinking water, agriculture, livestock, health, education, sustainable use of natural resources, women empowerment, youth development, and addressing various social issues. Since water is a scarce resource in the region, it has been an area of major intervention. Water conservation and promotion of total sanitation has been successfully achieved in 55 villages and has been acclaimed nationally by awards at different levels by different organizations. He is also involved in schools run by the family in various parts of the country. And the schools endeavor to uplift the quality of education available to the children from towns and villages. He takes interactive sessions with students in various parts of the country on a basic theme of building our nation great through character building, through justice, self-righteousness, and right attitudes. He conducts programs with teachers to help them teach the theme to students. Nyay or Swadharm se Rashtra is the basic theme of these programs. Mr. Dalmia received the award for outstanding contribution to national development by IIT Delhi Alumni Association in the year 2017 and Bhumi Putra Award by A1 TV Rajasthan in the year 2018. And IIT Delhi also recognized his outstanding contributions to the field of public service and policy and felicitated him with the Distinguished Alumni Awardee in the year 2018. Dalmia ji, once again, a very warm welcome from your own institute and association. We are very pleased that you have joined us today. And with these words, warm welcome, sir. Please request you to address everyone. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गीतांजलि। डॉक्टर गीतांजलि, ज्योत्सना जी, शैलेश जी, चांदना जी, काल्पन जी, डॉक्टर उपदेश, राकेश जी, आपको आज की राम राम। मैं हिंदी में बोलूँगा, आशा है कोई दिक्कत नहीं होगी हिंदी में। सर प्लीज आप उसी में बोलिए सर। आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं तो हम एक तरफ तो बात करते हैं कि हमारा पूरा देश आत्मनिर्भर बने, हम इंपोर्ट नहीं करें या हमारे एक्सपोर्ट्स इतने अच्छे हों कि हम बहुत अच्छे से इंपोर्ट कर सकते हैं, हमारी इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे से बड़ी हों, हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजीज आएँ और हम उन सब चीज़ों में सक्षम हो जाएं। हम लोग बाहर जाके दूसरों के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, हम अपने लिए खुद के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करें। दूसरा जो एस्पेक्ट है आत्मनिर्भर का, वो है हमारा देश का आम आदमी। क्या हमारा देश का आम आदमी आत्मनिर्भर बन सकता है? तो कैसे बन सकता है? हम बात करते हैं आत्मनिर्भर किसान की। आज हमारा किसान आत्मनिर्भर नहीं है, ये सबको सच्चाई मालूम है। आत्मनिर्भर आम आदमी, हमारे देश का जो आम आदमी है वो भी आत्मनिर्भर नहीं है। अपनी खुशी से कुछ करना चाहे तो वो नहीं कर सकता है। आत्मनिर्भर एजुकेशन, क्या हमारी एजुकेशन आत्मनिर्भर है? हम लोग अभी भी डिपेंड करते हैं कि हमारे इंजीनियर्स या जो डॉक्टर बनने वाले हैं वो यहाँ पे ग्रेजुएशन करने के बाद बाहर जाके अपने आगे की पढ़ाई करते हैं। आत्मनिर्भर हेल्थ, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो यहाँ पे अपनी हेल्थ को ठीक नहीं करवाना चाहते हैं, वो अमेरिका जाना चाहते हैं या इंग्लैंड जाना चाहते हैं, वहाँ के हेल्थ सिस्टम को बेटर समझते हैं, शायद होगा भी। वो हम आत्मनिर्भर हम कैसे बन सकते हैं? आत्मनिर्भर विमेन, हमारी देश की औरतें
जो पढ़ लिख जाती हैं, खुद काम करने लग जाती हैं, वो तो आत्मनिर्भर बन जाती हैं। लेकिन क्या हमारी बाकी जो हमारी औरतें हैं, जो मिडिल क्लास की औरतें हैं, जो गांव की औरतें हैं, जो गरीब औरतें हैं, क्या वो आत्मनिर्भर बन सकती हैं? आत्मनिर्भर हमारा गरीब आदमी, आत्मनिर्भर हमारी पारदर्शिता, क्या हम हर चीज को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं? आत्मनिर्भर अधिकार, क्या हमारे जो अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के लीजिए या जो भी अधिकार हमको कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं, क्या वो हमको रियली अवेलेबल हैं? तो मैं अभी जो छोटी सी बात करूंगा वो मैं ऐसे आत्मनिर्भर की बात करूंगा जो जमीनी लोगों से जुड़ी हुई हो, जमीनी लोगों से जुड़ी हुई हो। हम लोग छोटी छोटी चीजों को हम कैसे टेक्नोलॉजिकली डेवलप कर सकते हैं और उसको पूरे भारत को कैसे हम उसको उसका फायदा दिला सकते हैं। आज ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस सबके माइंड में है। सब लोग जानते हैं कि खेतों के अंदर इतना केमिकल यूज होता है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अभी भी हम किसानों को कन्विंस नहीं कर पाए हैं कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, क्योंकि उनके मन में एक डर बैठा हुआ है। ये एक टेक्नोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी व्यक्ति अगर इसको एक स्टार्टअप के रूप में लेना चाहे कि मैं एक छोटा सा फार्म करूंगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगा और फिर उसके हिसाब से दूसरे लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। दूसरा हो गया, दालमिया जी आप म्यूट पे चले गए। कैसे पता नहीं कैसे चला गया हो गया। दूसरा है हमारा बायो एंजाइम्स। आजकल ये नई चीज मेरे दिमाग में आई है, पता नहीं और कितने लोगों के पहले भी आई होगी। मेरे एक मित्र हैं राम प्रकाश, आईआईटी दिल्ली से ही वो साथ में हम लोग पास आउट किए हैं। वो बायो एंजाइम के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे होंगे, ही इज वन ऑफ देम। घर घर में वो कोशिश कर रहे हैं कि लोग बायो एंजाइम बनाएं। बायो एंजाइम से केमिकल्स का छुटकारा हम पा सकते हैं। घर के अंदर हम जितने केमिकल्स यूज करते हैं उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। घर घर में अगर हम ये बायो एंजाइम बनाएं तो घर घर को इसका फायदा मिल सकता है। और इसमें कुछ भी चीज नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है, बहुत सस्ती सी चीज है। हम लोग हम जो चिड़ावा में काम करते हैं किसानों के साथ, हमने बायो एंजाइम यूज किया है खेतों में। इनिशियल रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, किसान की फसल अच्छी हो रही है। अभी रिजल्ट जो भी ये फसल निकलेगी करीब मार्च अप्रैल के अंदर, तो एक्चुअल रिजल्ट मालूम चलेगा, लेकिन जो इनिशियल रिजल्ट्स हमको दिख रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। हम किसानों को बायो एंजाइम किस तरीके से उनसे बनवा सकते हैं? आप घर घर में बायो एंजाइम बनाओ, अपने खेतों में बायो एंजाइम को यूज करो, और हर तरीके से वो बन सकते हैं। विदेशों के अंदर तो बायो एंजाइम जो है वो कमर्शियली बनता है। हम लोग कमर्शियली बनाए तो बहुत अच्छा, नहीं भी कमर्शियली बनाए, घर घर के अंदर बायो एंजाइम बन सकता है। बट ये टेक्नोलॉजी, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस टेक्नोलॉजी को जगह 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 पास ऑन करे और लोगों को बताए, तो लोग उसमें आत्मनिर्भर बन सकते हैं। बायो कंपोस्टिंग, घर के अंदर जितना कचरा निकलता है उसको हम कंपोस्टिंग कर सकते हैं। राम प्रकाश, अगेन मैं राम प्रकाश की बात करूंगा। राम प्रकाश ने बायो कंपोस्टिंग घर घर में काम करने के लिए उसने एक तकनीक डेवलप करी। हर घर के कचरे को हम अगर बायो कंपोस्टिंग कर सके, वो अपने घर में गार्डन में काम आ जाएगा, अपने घर में गमलों में काम आ जाएगा, नहीं तो हम उसको बेच भी सकते हैं। उसने कैलकुलेशन किया है, ये बिजनेस जितना हमारा अपार क्या कहते हैं, पहाड़ इकट्ठे हो गए हैं, जो हम लोगों के घर का कचरा निकल के बाहर जाके इकट्ठा हो गया है, जो ये म्यूनिसिपैलिटी ले जाके पहाड़ों में इकट्ठा कर देती है। उसके अंदर इतना किचन वेस्ट है, गीला वेस्ट है, जिससे हम कंपोस्टिंग कर सकते हैं। कंपोस्टिंग भी हो गया, खाद भी बन गई, और हमारे देश का जो है वो कचरा साफ हो गया। वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ। और उसने कैलकुलेशन किया है, मैंने उसको कैलकुलेशन को चेक नहीं किया है, दिस बिजनेस कैन बी थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स ऑफ बिजनेस।
और जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति उसको करे। ये चीज हम इतना फैला सकते हैं, इतना अपार स्कोप है कि हर व्यक्ति इसको कर सकता है। इसमें से या तो कमा सकता है या अपना पैसा बचा सकता है। ये हमारे छोटे छोटे आदमियों की आत्मनिर्भरता आएगी। एनवायरनमेंट के अंदर हमारा पानी गंदा हो रहा है, हमारी हवा गंदी हो रही है, हमारा पानी भूजल के नीचे चलता चला जा रहा है। हम कैसे उसे बचाएं, कैसे उसे साफ करें? ये टेक्नोलॉजी गांव में अवेलेबल नहीं है, लेकिन गांव का पानी भी दूषित होता चला जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी हमारे देश में अवेलेबल है, उसको एक्सप्लॉइट करके, यूज करके केवल अपने को काम में लेना है। प्लास्टिक का रिसाइकलिंग, मैंने एक पेपर पढ़े थे रिसर्च के अंदर। रोड्स जो प्लास्टिक, छोटे छोटे प्लास्टिक काट के उसके फाइबर को रीइंफोर्स करके लोगों ने रोड्स बनाए हैं एक्सपेरिमेंटल। बहुत बढ़िया काम करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। इसको अगर डेवलप किया जाए हमारे पूरे देश के अंदर, इमेजिन कर सकते हैं हजारों लाखों टन ऑफ वेस्ट प्लास्टिक हम उसको रीयूज कर सकते हैं। रोड, गांव के अंदर हम रोड्स बनाना चाहते हैं। आजकल मैं चाहता हूं, जब चढ़ावा वहां मैं देखता हूं, हर गांव के अंदर धीरे 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 अलकतरे के रोड्स बन रहे हैं। अलकतरे के बदले अगर हम ये प्लास्टिक का रीइंफोर्समेंट उनको दे दें, वेस्टेज भी कंज्यूम हो जाएगा, रोड भी बढ़िया बन जाएगा। एंड ए वेरी स्ट्रॉन्ग रोड, जो रोड हर बारिश के अंदर खराब हो जाता है, वो रोड हर बारिश के अंदर खराब नहीं होगा। ये हम एक आत्मनिर्भरता इसमें क्रिएट कर सकते हैं। छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज खुद यूज कर सकते हैं, खुद उसमें से पैसा कमा सकते हैं और दूसरों को डेवलप करने के लिए दे सकते हैं। इन सारी चीजों में इतना अपार क्या कहते हैं स्कोप है कि कोई जरूरी नहीं है कि वो एक ही व्यक्ति इसको करे। एक व्यक्ति करे और लोगों में ये टेक्नोलॉजी बांटे और बांट के सारे लोग इसमें बेनिफिट हों। इससे बढ़िया काम हम नहीं कर सकते हैं। जब मैं बांटने की बात करता हूं तो सिंपली ये बात करता हूं, हमको जो भी हम करते हैं, हमको हमारे देश के बारे में सोचना होगा, हमारे देश की बढ़ोतरी के बारे में सोचना होगा। आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पिताजी, अब तो नहीं है वो, जब बहुत पहले सीमेंट प्लांट हम लोगों ने लगाए थे, उन्होंने लगाए थे, हम लोगों ने तो क्या लगाए थे, उन्होंने लगाए थे। और डालमिया सीमेंट के नाम से है, इंडिया सीमेंट नया प्लांट लगाने वाला था। मेरे फादर ने उनको ऑफर किया, आप अपने इंजीनियर्स हमारे प्लांट में भेज दीजिए ट्रेन करने के लिए। कौन ऐसा करेगा? लेकिन उन्होंने ऐसा किया। उनसे पूछा लोगों ने कि आप ये क्या कर रहे हो, अपने कॉम्पिटिटर को क्रिएट कर रहे हो, आप उनको स्ट्रेंथन कर रहे हो। हमारे पिताजी ने सीधा जवाब दिया, सीमेंट का वास्ट स्कोप होने वाला है हमारे देश में। केवल डालमिया सीमेंट और इंडिया सीमेंट तो क्या, बतेरे सीमेंट प्लांट लगेंगे और उन सब की रिक्वायरमेंट होगी हमारे देश में आगे जाके। तो ये जितने इंजीनियर हम ट्रेन कर सकेंगे उसका फायदा हमारे देश को होगा। ये है शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, ये है क्रिएटिंग आत्मनिर्भरता। नहीं तो इंडिया सीमेंट को भेजना पड़ता हो अपने इंजीनियर्स को बाहर, जहां से मशीनरी इंपोर्ट हो रही थी, हमारा फॉरेक्स बाहर जाता, हमारे देश का खर्चा बाहर होता, सारा का सारा खर्चा हमारे देश के अंदर रह गया। पैसा भी नहीं लिया, वो एक सेपरेट मैटर है। हम जो भी काम करेंगे, जो भी तरह का बिजनेस करेंगे, एक चीज हमें हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी, हमारा फोकस हमारा देश होना चाहिए। एक आपको जीडी बिरला जी का एग्जांपल देता हूं। शाम के समय एक बार वो अपने घर में बैठे हुए थे, उनका पोता आया उनके पास। उनके पोते ने उनको एक सूट लेंथ दिखाया। सूट लेंथ दिखा के बोला कि काको जी, वो अपने दादाजी को काको जी बोला करता था, बोले काको जी ये एक सूट लेंथ हम लोगों ने इंपोर्ट करी है,
और ये इंपोर्टेड सूत लेंथ, एक एक सूत लेंथ 3-3 लाख रुपए की बिकेगी, हम लोगों को बहुत फायदा होगा। उन्होंने पूछा कितनी सूट लेंथ बेच लेगा, बोले जी हजारों में तो आराम से बिक जाएगी। 3 लाख रुपए की सूट लेंथ हजारों में बेच लेंगे। इमेजिन करिए व्हाट काइंड ऑफ प्रॉफिट्स वाज ही टॉकिंग अबाउट। उन्होंने सिंपली बोला, और सोच देखिए जी डी बिरला जी की, वो हमारे पूर्वज हैं, क्या सोच थी उनकी। वो बोले देखो हम तो इन सूट लेंथ को बेच बेच के अच्छा पैसा कमा लेंगे, परंतु इमेजिन करो वो मिडिल क्लास का आदमी जो अपनी लड़की को ब्याने के लिए जाएगा, लड़के वाले बोलेंगे मेरे को वो 3 लाख की सूट लेंथ दो दहेज में, वो मिडिल क्लास का आदमी कहां से देगा? वो अपना खेत बेचेगा, जमीन बेचेगा, घर बेचेगा, अपनी सेविंग्स में से पैसा निकालेगा, बर्बाद हो जाएगा। क्या हमको ये काम करना चाहिए? पहले समाज, समाज के ऊपर हमारे एक्शंस का क्या इफेक्ट आएगा, ये है हमारा आत्मनिर्भर भारत। हमारा जो भी एक्शन हो वो समाज के लिए बेनिफिशियल हो, देश के लिए बेनिफिशियल हो। दो तीन एग्जांपल छोटे छोटे और बताता हूं बिफोर आई फिनिश। टाटा स्टील में उन्होंने एक स्कीम निकाली थी कि जो व्यक्ति ब्लड अपना डोनेट करेगा वो 1 दिन की छुट्टी करेगा। उसका केवल पर्पस ये था एनकरेजिंग द पीपल टू गो एंड डोनेट द ब्लड। प्लस ब्लड डोनेशन के टाइम पे जो थोड़ी बहुत वीकनेस आती है वो घर जाके अपना रेस्ट कर सकता है। वहां के अफसरों ने बोला कि जी कितने मैन डेज हमारे वेस्ट होते हैं इसके अंदर। अगर हम ये ब्लड डोनेशन तो बहुत होता है देश के अंदर, अगर हम ये बंद कर दें तो हमारे मैन डेज बहुत बच जाएंगे। रतन टाटा का क्या जवाब था? वो बोले ये मैंडेज तो हमारे खर्च हो जाएंगे, बट इमेजिन करो ये खून जिन लोगों को मिलेगा उनके कितने मैंडेज बच जाएंगे, वो भी हमारे देश की संपत्ति है, वो भी हमारा है। हमको वहां भी सोचना चाहिए। ये उन पूर्वजों की सोच थी। आज के बिजनेसमैन को भी इसी तरह से सोचना पड़ेगा। छोटा व्यक्ति जो करेगा उसको भी सोचना पड़ेगा। आईआईटी के जितने स्टूडेंट्स हैं और आईआईटी से जो पास आउट किए हुए लोग हैं जो आज अपना अपना बिजनेस चला रहे हैं, हमको हर बिजनेस में, हर बिजनेस की डिसीजन के अंदर इस तरह की सोच रखनी पड़ेगी। हमारा कोई ऐसा डिसीजन तो नहीं है जो समाज को बुरा इफेक्ट होगा, या ऐसा कोई डिसीजन है जिससे हम समाज का अच्छा कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। सुमंत मुलगांवकर, सबने नाम सुना होगा, टाटा मोटर्स। 60s की बात है या प्रोबेबली अर्ली 70s की बात है। टाटा ट्रक्स में नॉर्मल गियरबॉक्स हुआ करता था, सिंक्रोनस गियरबॉक्स नहीं हुआ करता था। सबको मालूम है सिंक्रोनस गियरबॉक्स लग जाने से जो भी व्हीकल होता है उसको चलाने के अंदर बहुत आसान हो जाता है, हार्ड नहीं होता है। उस जमाने में टाटा ट्रक का स्टीयरिंग बहुत हार्ड हुआ करता था चलाने के लिए, ड्राइवर को बहुत एफर्ट करना पड़ता था, थक जाता था। सुमंत मुलगांवकर ने कहा कि हमको सिंक्रोनस गियरबॉक्स हमारे ट्रक में लगाना है। लोगों ने कहा बोले जी सिंक्रोनस गियरबॉक्स महंगा बहुत आता है और आजकल तो प्राइस कंट्रोल है, हम ट्रक का दाम बढ़ा नहीं सकते हैं, तो हमारे इतने लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। सुमंत मुलगांवकर का सिंपल जवाब था, मेरे कस्टमर मेरे वो ड्राइवर हैं जो ट्रक चलाते हैं, और वो अगर अच्छे से गाड़ी चला पाएंगे, थकेंगे नहीं, तो फ्यूचर में अपने मालिक को वो यही बोलेंगे, बोले जी कौन सी ट्रक खरीदनी, आप टाटा ट्रक खरीदो। ये सोच कि मेरे ड्राइवर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए,
ये वही हमारे जो पूर्व लोग हैं वही लोग सोच सकते थे, और वो सोच को आज हमारे देश में हम लोगों को ऐसी सोच को क्रिएट करना है, सब हमारे बिजनेस में। तो जब मैं बात करता हूं आत्मनिर्भर भारत में, छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज, छोटे छोटे आदमी, आम आदमी, किसान, विमेन, मैन ऑन द रोड, हम इस तरह की सोच क्रिएट कर सकते हैं। इतने अपने अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजीज को वास्टली शेयर कर सकते हैं विदाउट एनी लॉस टू अस, वास्टली शेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा देश, हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के लोग अपने जीवन में आत्मनिर्भर बने। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इन सब चीजों की वजह से, इन सब चीजों से हम लोगों को हमारे देश को अपना पार्टनर बनाना होगा। मेरा पार्टनर है तो मैं ये इंश्योर करूंगा कि जो मेरे को प्रॉफिट मिलेगा या जो मेरे लिए अच्छा है वो मेरे देश के लिए भी अच्छा होना चाहिए। अगर मेरे देश के लिए अच्छा है तो वो मेरे लिए भी अच्छा होना चाहिए। हमारे देश को हमको अपना पार्टनर बनाना होगा। क्या लेगेसी हम छोड़ के जाएंगे? कभी ना कभी इस दुनिया से हम छोड़ के जाएंगे। क्या लेगेसी छोड़ के जाएंगे? लोगों को, हमको, हमें याद करें, ऐसा काम करें, सुगंध फैलाएं, दुर्गंध ना फैलाएं, केवल अपने बारे में ना सोचें, देश के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें। अगर हम ये सोचेंगे, ये करेंगे, तो हम जो विरासत देंगे अपने अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए, वो विरासत बहुत सुंदर विरासत होगी। नहीं तो हमको जो मिला है उससे खराब विरासत हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए छोड़ के जाएंगे। तो दोस्तों, मैं हमेशा यहां बात करता हूं, हमेशा ये कहता हूं, भैया ये मेरा देश है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। दूसरों के ऊपर ये जिम्मेदारी ना छोड़ें। सरकार करेगी नहीं, हमको भी करना है। सरकार अपना काम करेगी, हमको अपना काम करना है। ये मेरा देश है, ये मेरी जिम्मेदारी है। जय हिंद दोस्तों। डालमिया जी, आपको नमन, आपकी सोच को अभिनंदन, हार्दिक आपका धन्यवाद। और आपने बहुत अच्छे हम सभी को सुझाव दिए हैं, जिनसे छोटी छोटी तकनीक से हम अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और हमें देश के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। बहुत ही सुंदर विचार आपके। आपका फिर से